رات بھی شاپنگ کرو، ہوٹلوں میں کھانے کھاؤ، سیر کے لیے جہاں مرضی جاؤ، سینما میں فلمیں دیکھو یا تھیٹرز میں ڈرامے، اب کوئی نہیں روکے گا۔ حکومت نے لاک ڈاؤن کو 10 اگست سے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزارات، جمز، کلبز، ایکسپو سینٹرز کو بھی کھولنے کی اجازت۔ شادی ہالز اور تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولنے کا فیصلہ۔ کورونا وائرس کی وجہ سے بند کیے گئے تھیٹرز اور سینماز 10 اگست سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فنکار برادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ملتان میں فنکاروں اور تھیٹرز مالکان کی جانب سے جشن منایا گیا۔ بہت شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ انہوں نے تھیٹروں کو اوپن کر دیا، باقی بھی کاروبار اوپن کیا ہے۔ 14 مارچ سے یہ تھیٹر پورے پاکستان میں بند تھے اور فنکاروں کی معاشی صورتحال انتہائی مخدوش ہو چکی تھی۔ شادی ہالز اور تعلیمی اداروں کو بھی 15 ستمبر سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس پر شادی ہالز مالکان اور ویٹرز بھی خوش ہیں۔ مالکان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ سے بے روزگاری کی وجہ سے انتہائی پریشان کن صورتحال تھی، اب معاملات درست سمت کی جانب چل پڑے ہیں۔ ہمارا بھی خیال آیا ہے، ہم 5-6 مہینے سے بہت پریشان تھے سٹاف کے لیے، جن کے بچے غریب لوگ تھے، جن کے بچے بہت پریشان تھے اسکول کالج کی وجہ سے۔ اب شکر ہے الحمدللہ، ہمیں امید ہوئی ہے، ہمیں تھوڑا سا ہوپ ہے کہ شادی ہاؤس وغیرہ بھی اوپن ہوں گے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس میں کمی کے بعد تاجروں کو بھی ریلیف دے دیا گیا۔ مارکیٹیں اب ہفتے میں 2 دن کے بجائے 1 دن بند رہا کریں گی۔ چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ شفیق نے حکومت کے اس فیصلے کو سراہا۔ 1 day in a week جو عرصہ دراز سے سلسلہ چل رہا تھا قانون، آپ کو اپنے کاروبار بند کرنا فرائیڈے اور سنڈے، جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے، جہاں فرائیڈے سوٹ کرتا ہے وہ فرائیڈے آپ رکھیں گے، جو سنڈے سوٹ کرتا ہے وہ سنڈے کو آپ کریں گے۔ اس طرح لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے۔ کبڈی، کشتی، رگبی کے علاوہ دیگر سپورٹس کی اجازت بھی دے دی گئی، لیکن تماشائیوں کے بغیر کبڈی اور ریسلنگ سے پابندی ختم نہ کرنے پر ملتان کے پہلوان حامد خان کہتے ہیں کہ گھروں میں فاقی ہیں، اس کھیل سے پابندی ہٹا دینی چاہیے۔ مہربانی، یہ کھیل ہمارا ثقافتی کھیل ہے، میلوں، ٹھیلوں، دنگلوں میں یہ کھیلا جاتا ہے، یہاں پہ کھلی جگہوں پہ میدانوں میں یہ کھیلا جاتا ہے، دیہاتوں میں کھیلا جاتا ہے، شہروں میں کھیلا جاتا ہے، اس کو SOPs کے مطابق کھول دیا جائے۔ شہر میں موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر پابندی بھی ختم کر دی گئی۔ پارلرز، جم، مزارات، درگاہیں 10 اگست سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عرس کے لیے صوبائی انتظامیہ سے اجازت درکار ہوگی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر علیشوا آصف، مقصود چوہان کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ قومی ایئر لائن کے بکنگ آفس اور ایئرپورٹ کی رونقیں ہوں گی بحال۔ ملتان بین الاقوامی ایئرپورٹ سے ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن 12 اگست سے بحال ہوگا۔ ملتان ایئرپورٹ سے اسلام آباد اور کراچی کے لیے 14 اگست سے باقاعدہ فلائٹ آپریشن شروع کیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ کورونا کے باعث ملتان ایئرپورٹ سے بند ہونے والا ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن 12 اگست سے بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ قومی ایئر لائن کے بکنگ آفس اور ایئرپورٹ کی رونقیں بھی بحال ہو جائیں گی۔ ملتان ایئرپورٹ سے کراچی اور اسلام آباد کے لیے پروازیں دستیاب ہو سکیں گی۔ 14 اگست سے باقاعدہ شیڈول کے مطابق ڈومیسٹک پروازیں شروع ہو جائیں گی، جبکہ ملتان ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن پہلے سے ہی جاری ہے۔ جنوبی پنجاب کے شہریوں سے آٹا مہنگا کرنے والوں کے خلاف شکایات درج کرانے کی اپیل۔ ملتان میں سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں آٹا مہنگا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، اپوزیشن کو بھی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر وہ ملتان آئے ہیں۔ جنوبی پنجاب آنے کا مقصد آٹے کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر صوبوں میں 20 کلو آٹے کی قیمت 1100 ہے، صرف صوبہ پنجاب میں آٹے کا تھیلا 860 روپے کا ہے۔ آٹے کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ حکومت سندھ کے میرے چیف منسٹر صاحب سے گزارش ہے، میں بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اپنی عوام پہ بھی رحم کریں، سندھ کی ہمارے بہن بھائیوں پہ بھی رحم کریں، ان کا بھی حق ہے کہ ان کو پنجاب کی طرح سستا آٹا ملے۔ عبدالعلیم خان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اپنی عوام پر رحم کھائیں اور انہیں سستا آٹا فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ روٹی اور نان میں لمبے منافع کمانے والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جنوبی پنجاب کا صوبہ ضرور بننا چاہیے۔ جنوبی پنجاب کا جو صوبہ ہے، ہم سارے اس کے ساتھ ہیں۔ جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے،
हमारे वजीर आजम ने इसका ऐलान किया था और उसके लिए पहला स्टेप जो है वो हो गया है। पहले स्टेप में सेक्रेटेरिएट बनेगा और सेक्रेटेरिएट के बाद सुबह भी इंशाल्लाह जरूर बनेगा। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब खुराक अब्दुल अलीम खान ने मुल्तान आमद पर कमिश्नर ऑफिस में आले सतही इजलास की सदारत भी की। कमिश्नर मुल्तान शानुलट, CPO हसन रजा, डायरेक्टर पंजाब फूड, डिप्टी डायरेक्टर मुल्तान फूड इकराम अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल ख्वाजा मोहम्मद उमैर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तैयब खान समेत दीगर शरीक हुए। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ गौर रहमान, मुल्तान। फ्लोर मिल्स को रोजाना 1260 टन का गंदम का कोटा जारी। 97 फ्लोर मिल्स की जानिब से रोजाना 40,000 आटे के थैलों की फराहमी। डिप्टी डायरेक्टर खुराक अकरम लूथड़ कहते हैं कि हुकूमती पॉलिसी आने पर चक्कियों को गंदम का रोजाना कोटा जारी किया जाएगा। मुल्तान डिवीजन में ऑपरेशनल 97 फ्लोर मिल्स को रोजाना की बुनियाद पर 40,000 आटे के थैले फराहम करने का कहा गया है। डिप्टी डायरेक्टर खुराक अकरम लोठड़ ने रोही को बताया कि इन फ्लोर मिल्स को रोजाना 1260 टन गंदम का कोटा जारी किया जाता है। गंदम भी वाफिर है और आटे की सप्लाई भी डेली बेसिस पे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे बंदे फ्लोर मिल्स पर मौजूद हैं और वो रेगुलर चेक कर रहे हैं। डेली सप्लाई तकरीबन 40,000 20 किलो वाला थैला जो है वो मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं हम लोग मुल्तान डिवीजन में। डिप्टी डायरेक्टर खुराक अकरम लोठड़ का मजीद कहना था कि मुल्तान डिवीजन में 6 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद है, जबकि गुज़िश्ता साल मुल्तान डिवीजन में 3 लाख टन गंदम इस्तेमाल की गई। एक्सबिल रेट जो है वो 837 है, रिटेल रेट 860 रुपए है 20 kg थैले का। और चक्कियों के लिए गवर्नमेंट की ने जो पॉलिसी जब बनाएंगे, जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उसके बाद हम लोग उनको भी शुरू कर देंगे। अकरम लुठन ने बताया कि 20 किलो आटे का थैला मार्केट में 808 रुपए में दस्तयाब है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में कपास की फसल पर सफेद मक्खी, सब्ज तिला, थ्रिप्स और गुलाबी सुंडी का हमला। महकमा ज़राअत की क्रॉप रिपोर्टिंग के मुताबिक कपास के ज़ेरे काश्त रकबे में 5 लाख एकड़ कमी हुई है। रवां माह कपास की फसल के लिए अहम तरीन है क्योंकि फसल पर कीड़ों के हमले में शिद्दत आई है। कपास की बेहतर फसल के हवाले से डायरेक्टर काटन डॉक्टर सगीर अहमद का रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि काश्तकार रस चूसने वाले कीड़ों के हयातियाती कंट्रोल के लिए क्राइसोपरला कार्ड 80 से 90% फी एकड़ इस्तेमाल करें। सूरत हाल जो कपास की इस वक्त मैं पंजाब का पूरा मैं चक्कर लगा के आया हूँ। पहले नंबर पर सफेद मक्खी है जो हमारी पिछले गुज़श्ता सालों में मसला रहा है। दूसरे नंबर पर थ्रिप्स है और जेसिड है और साथ साथ जो है वो शेडिंग हो रही है। तो ये 4 जो चीजें हैं ये हो रही हैं, इससे जो है यकीनन जो है ना वो पैदावार में कमी होगी। डॉक्टर सगीर अहमद का मजीद कहना था कि काश्तकार टिंडे की सुंडियों के लिए ट्राइकोग्रामा कार्ड 5 से 6 फी एकड़ इस्तेमाल करें। लश्करी सुंडी का हमला नजर आए तो मुतासरा पत्तों को तोड़कर जमीन में दबा दें और अगर हमला सारे खेत में हो तो मुनासिब जहर पाशी की जाए। काश्तकार एक ही ग्रुप की जहरों को बार बार स्प्रे न करें। हमने प्लान बनाना है जो किसानों ने सफेद मक्खी को कंट्रोल करने का। सफेद मक्खी के साथ जो ब्लैकनिंग होती है, काली हो रही है, वो फंगस की वजह से होती है। तो इस वक्त सफेद मक्खी का स्प्रे अच्छा करें और जो किसानों ने करना है पेस्ट स्काउटिंग बड़ी जरूरी है, 2 हफ्ते में 2 दफा। और साथ साथ जो आपने पर वक्त स्प्रे करना है, शाम को स्प्रे करें, फंजीसाइड जरूर मिलाएं। काटन जोन में काश्तशुदा कपास भी शदीद खतरे से 2-4 है। कपास के पौधे से फल की शेडिंग का अमल जारी है। काटन जोन में मुख्तलिफ इलाकों में कपास की फसल का रंग सबज से काले में तब्दील हो रहा है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ रजा मलिक, मुल्तान। बहावलपुर में कपास की फसल का अहम तरीन मरहला शुरू। महकमा ज़राअत के माहिरीन का कहना है कि इस वक्त काश्तकारों को रोजाना की बुनियाद पर फसल का मुआयना करना होगा। बहावलपुर डिवीजन में सरायकी खित्ते में कपास की फसल पर फल लगने का अमल जारी है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में बारिश की भी पेशेगोई की है। ज़राई माहिरीन का कहना था कि आइंदा बारिश कपास की फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। फसल को नुकसान से बचाने के लिए काश्तकारों को खेत से बारिश का पानी फौरी निकालना होगा। अगले हफ्ते फिर बारिशों का चांस बन रहे हैं। फसलों में इस टाइम पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, ये हम बहुत बुनियादी बात है। कपास में अगर पानी खड़ा होगा तो वो कपास के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, उससे तमाम फल जो है वो गिर जाएगा। डायरेक्टर ज़राअत ओसी बहावलपुर जमशेद सिंधु का कहना था कि इस वक्त कपास की फसल इंतहाई हसास मरहले में है। काश्तकारों को स्प्रे करने से पहले हमलावर कीड़ों की पहचान करना होगी। ज़रिए अद्वियात का इस्तेमाल और पेस्ट कोटिंग और कीड़ों मकोड़ों की पहचान, कभी भी अंधाधुंध स्प्रे नहीं करने चाहिए। हफ्ते में कम से कम 2 दफा खेत में जाएं, कीड़ों की पहचान करें और उनके लिए जो मखसूस
हम रिकमेंड करते हैं अद्वियात उन्हीं का इस्तेमाल करें। ज़राई माहिरीन के मुताबिक इस वक्त काश्तकारों को चाहिए कि वो रोजाना की बुनियाद पर बेस स्काउटिंग करें। स्प्रे के इंतखाब से पहले महकमा ज़राअत के फील्ड अमले से मुशावरत करें। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ अतर लशारी, बहावल। कमिश्नर डीजी खान साजिद जफरडाल की ज़ेर सदारत इजलास तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। पुल डॉट की रीडिजाइनिंग समेत दीगर मंसूबों की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। महकमा हाईवेज पुल डॉट को 5 माह में मुकम्मल करेगा। कमिश्नर डीजी खान साजिद जफरडाल की ज़ेर सदारत इजलास तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इस मौका पर कमिश्नर डीजी खान साजिद जफरडाल का कहना था कि PHA अगले साल 31 मार्च तक मुल्क के संगम पर वाक़िया चौक को जाजिब नजर बनाएगा, जिस पर 40 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। चौक की कुशादगी के लिए 18 कनाल रकबा खरीदा गया। DC ताहिर फारूक ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि फंड्स मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर मजीद रकबा भी खरीदा जा सकता है। कमिश्नर साजिद जफरडाल का कहना था कि डीजी खान डेवलपमेंट पैकेज और वहवा पैकेज के तहत 225 स्कीमें मुकम्मल करवाई जाएंगी। इजलास में डीजी खान और वहवा डेवलपमेंट पैकेज के तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। डेवलपमेंट के अफसरान ने बताया कि 145 जारी मंसूबे डेवलपमेंट पैकेज में शामिल हैं। कमिश्नर ने कहा कि तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएं, जबकि मटीरियल के मेयार पर हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा। मियांवाली में बंद वाटर सप्लाई स्कीमों को 15 अगस्त तक चालू करने के अहकामात। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत इजलास मुतल्लिका अफसरान को वाटर सप्लाई स्कीमों के इलेक्ट्रिसिटी नए कनेक्शन यकीनी बनाने की हिदायत। ने मुतल्लिका अफसरान को वाटर सप्लाई स्कीमों के बिजली के नए कनेक्शन को यकीनी बनाने के अहकामात देते हुए कहा कि जिन वाटर सप्लाई स्कीमों के कनेक्शन शिफ्ट करने हैं उन्हें फौरी तौर पर शिफ्ट करवाया जाए। हुकूमत ने करोड़ों रुपए की लागत से वाटर सप्लाई स्कीमों में नई मशीनरी नस्ब करवाई है। ये बिजली कनेक्शन के बगैर चेक नहीं की जा सकती। एक्सीएन फेस्को मियांवाली और कालाबाग ने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि स्टोर में पोल्स ट्रांसफार्मर्स न होने की वजह से बरवक्त कनेक्शन नहीं किए जा सके। उन्होंने काम जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई है। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब का बड़ा इकदाम। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ ड्रॉप इंक्वायरियां खोलने का फैसला। एंटी करप्शन ने मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान को तलब कर लिया। फातिमा जिना हाउसिंग स्कीम में करोड़ों रुपए मालियत की गैर कानूनी अदायगियों और सियासतदानों की जमीनें छोड़ने के इल्जामात पर इंक्वायरियां शुरू की गईं। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक MDA के अफसरान ने मिली भुगत से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की फातिमा जिना हाउसिंग स्कीम में आने वाली करोड़ों रुपए मालियत की सैकड़ों कनाल अराजी एक्वायर्ड ना की थी, जिसने साबिक सूबाई वजीर जेल खानाजात अब्दुल वहीद अराई साबिक MPA राय मुनसब के बेटे राय आरफ मुनसब की अराजी निकाली गई। 1 साल कबल वजीर आला पंजाब की इंस्पेक्शन टीम की जानिब से मुरतब करदा रिपोर्ट को भी तहकीकात का हिस्सा बनाने की हिदायत की। एंटी करप्शन ने मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान को तलब कर लिया है। MDA के साबिक DG तसद्दुक बुहारी, साबिक डायरेक्टर अब्दुल्ला शाहिद अहमद, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर मोहम्मद शुएब बोसन और मलिक जहूर अहमद को भी तलब कर लिया है। डीजी खान DHQ अस्पताल में घपले और मुबैना करप्शन। नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब टीम की डीजी खान DHQ अस्पताल आमद 5 साल करप्शन और घपलों का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। नैब ने मुबैना तौर पर 33 करोड़ रुपए की करप्शन के इल्जामात पर तहकीकात शुरू की। 33 करोड़ की मुबैना करप्शन पर तहकीकात का दायरा वसी। नैब ने शहरी की दरख्वास्त पर अमल दरामद करते हुए DHQ अस्पताल में मुबैना घपलों की तहकीकात शुरू कर दी। नैब टीमों ने 5 साल का रिकॉर्ड और कई 100 फाइलें तहवील में ले ली। पेंडिंग लायबिलिटीज थी, इसमें 1 करोड़ 30 लाख और 13 करोड़ रुपए की पेंडिंग लायबिलिटीज की इनकी फ्रॉड है, फज है। कोटेशन का सहारा लेते हैं ये हमेशा। इसमें जो मेन मरकजी किरदार है नजर हुसैन जड़ है, उसके बाद डायरेक्टर फाइनेंस हैं दो MS हैं, उसके बाद 2 परचेज ऑफिसर हैं, 8 बंदों के खिलाफ एक कंप्लेंट है। इनकी 6 फर्जी फर्में भी हैं। नजर जड़ की 6 फर्जी फर्में हैं। उसके बाद इनके करोड़ों नहीं अरबों रुपए के साथ जाते हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। नैब पहली दफा ये कार्रवाई कर रहा है। नैब ने मुबैना करप्शन पर फरीकैन के बयानात भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हुसैन आजाद ने मौकफ अपनाया कि 10 साल का रिकॉर्ड निकाला जाए। नैब ने 5 साल के दौरान करप्शन और घपलों का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। तफ्तीश के बाद नैब टीमों ने रिकॉर्ड गाड़ियों में मुंतकिल किया। जराये ने दावा किया है कि तहकीकात के दौरान कई पर्दानशीनों के नाम सामने आने का इम्कान है। डीजी खान की तहसील कोट छुट्टा सुई गैस की सहूलत से महरूम। साबिका हुकूमत के दौर में सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह तो किया गया, मगर मंसूबा सिर्फ इफ्तिताही तख्ती तक ही महदूद रहा। डेरा गाजी खान की तहसील कोट चट्टा में सुई गैस फराहमी ना हो सकी। साबिक दौरे हुकूमत ने सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह साबिक वफाकी वजीर सरदार अवैस लगारी की जानिब से किया गया, मगर वो मंसूबे का इफ्तिताह सिर्फ इफ्तिताही तख्ती तक ही महदूद रहा। हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमें गैस भी फराहम करें, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत ने हमें फराहम नहीं किया। इफ्तिताह तो किया था, लेकिन पाइप वगैरह डाल गए थे गैस वाला,
लेकिन फिर उठा के चले गए। कोट चट्ठा में सुई गैस ना होने के बायस इलाका मकीनों को दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीनों का कहना था कि सुई गैस ना होने के बायस खवातीन खासी परेशान हैं। सुई गैस का इफ्तिताह किया गया था, सुई गैस नहीं आई, साको मुश्किलात थी, खवातीन तंग थी। कोट चट्ठा के मकीनों ने मुतालबा किया कि कोट चट्ठा में सुई गैस फराहम की जाए ताकि मकीन मुस्तफीद हो सके। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। दूसरी जानिब सनावा के शहरियों के लिए खुशखबरी, 10 साल बाद अस्पताल में नया डेंटल यूनिट नस्ब कर दिया गया। डेंटल सर्जन ने अपने दोस्तों की मदद से अस्पताल को डेंटल यूनिट अतिया किया। RSC सनानवा अस्पताल का डेंटल यूनिट 2010 में नकारा हो चुका था। अस्पताल में डेंटल सर्जन तो तैनात थे, लेकिन डेंटल यूनिट खराब होने की वजह से शहरी महंगे दामों इलाज कराने पर मजबूर थे। 10 साल बाद डेंटल सर्जन ने अपनी मदद आप के तहत RSC सनावा अस्पताल में डेंटल यूनिट दस्तयाब कर दिया। शहरी अब RSC सनावा अस्पताल में अपने दांतों का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। डॉक्टर उमर फारूक का कहना है कि डेंटल यूनिट न होने की वजह से शहरी महंगे दामों इलाज कराने पर मजबूर थे। मशीनरी नहीं थी और इस वजह से यहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता था, दांतों से हवाले से कोई इलाज नहीं हो सकता था, लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना था और प्राइवेट सेटअप पे ही काम करा सकते थे। तो अब इंशाल्लाह यहाँ पे ये मशीन लग गई है और इनको अब सरकारी रेट पे मेयारी इलाज मुहैया हो जाएगा इंशाल्लाह। MS डॉक्टर अल्लाह बख्श सहू ने कहा कि अपने दोस्तों की मदद से अस्पताल के लिए डेंटल यूनिट खरीदा है। काफ़ी अरसे से हमारा डेंटल यूनिट ख़राब था, रिपेयरेबल नहीं था वो, तो अब अल्लाह ताला के करम से नया यूनिट इंस्टॉल हो गया है, काम शुरू हो गया है, तो अब यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलत जो है ना मुयस्सर है। सैकड़ों की आबादी के लिए RSC सनावा अस्पताल में डेंटल यूनिट किसी नेमत से कम नहीं। लोगों ने इम्कान जाहिर किया है कि अब उन्हें बेहतर सहूलियात मुयस्सर होंगी। कैमरा टीम के हमरा ताहिर चौधरी, रोही, सनावा। डीजी खान इंतजामिया ने बारिशों के पेश नज़र फ्लड कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिया। फ्लड कंट्रोल रूम से कोहे सुलेमान के बरसाती नालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बाद डीजी खान इंतजामिया मुतहरिक हो गई। बारिशों के पेश नज़र फ्लड कंट्रोल रूम एक्टिव करके इमरजेंसी बुनियादों पर ड्यूटीज लगा दी गयी, जहाँ दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल समेत कोहे सुलेमान से आने वाले रोदकोइयों और सैलाबी नालों को मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे पास तकरीबन 7 से 8 आदमी हैं और राउंड दी क्लॉक हम चला रहे हैं इसको। अल्लाह की मेहरबानी से जब भी कोई ऐसी कॉल आती है, फौरी जो मुतलका इदारे हैं उनको फौरी तौर पे इतला दी जाती है और उसकी फिर फीडबैक भी लिया जाता है कि क्या हुआ क्या न हुआ। पब्लिक की तरफ से अगर कोई कंप्लेंट आ रही है उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको रिड्रेस कर रहे हैं। कंट्रोल रूम सेंटर के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी बारिशों की वजह से कोहे सुलेमान के नालों के बिफरने का खदशा है, जिसके पेश नजर कंट्रोल रूम में इमरजेंसी नाफिज करके 24 घंटे खोल दिया गया है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अहम डेरा गाजी खान है, क्योंकि यहाँ पे 2 किस्म के सैलाब आते हैं, एक इंडस रिवर का, दूसरा जो है ना रोदकोई जिसको हेल्टोरेंट कहा जाता है। और सबसे ज्यादा हेल्टोरेंट जो है, जो वडोर हेल्टोरेंट है, वो इफेक्ट करती है डेरा गाजी खान सिटी को। उसके लिए उसके चैनल भी अब बना दिए गए हैं, जो 3 चैनल्स बनाए हुए हैं, उनकी सफाई भी कर दी गई है। कोहे सुलेमान के बरसाती नालों पर टीमें भी तैनात कर दी गई हैं, जो इस बात का जायजा लेंगी कि कहीं बरसाती नाले डीजी खान शहर को तो मुतासिर नहीं करेंगे। मोहसिन उल मुल्क, ब्यूरो चीफ, डीजी खान। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान ने जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का फैसला कर लिया और तैयारियों को भी हतमी शक्ल दे दी गई। 9 अगस्त को नूरुल हसन पार्क में शजरकारी की जाएगी। PHA मुल्तान ने जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। 9 अगस्त को नूरुल हसन पार्क में शजरकारी की जाएगी। DG PHA का कहना था कि PHA हेड ऑफिस को भी सजाया जाएगा। यौम आज़ादी अहम तरीन दिन है, इस दिन को जोशो खरोश से मनाएंगे। इस डे से जश्न आज़ादी का चूँकि नाम है इसका, कोरोना की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें नहीं हो पाएंगी, बट स्टिल हम चाहते हैं कि इसको हम प्लांटेशन की सूरत में बहुत बड़ा एक तोहफा दें मुल्तान को। तो प्लांटेशन का यही है हमारा कि जैसे कि हम 9 अगस्त से शुरू कर रहे हैं, एक मैसिव कैंपेन शुरू कर रहे हैं, और उस कैंपेन में हमारा सबसे बड़ा फोकस यही होगा कि जो हमारे इंडिजिनस और यहाँ के वेल एक्लिमेटाइज्ड ट्रीज हैं, और ट्रीज भी वो लगाएं जो 10 से 12 फुट साइज के हों। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस ने तैयारियों से मुतालिक बताया कि अवाम में पौधे भी तकसीम करेंगे। जश्न आज़ादी को शायाने शान अंदाज से मनाएंगे। 9 अगस्त को प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के तौर पर सेलिब्रेट करें। उसी दिन हम एक तो प्लांट्स लगाएंगे बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पर नूरुल हसन पार्क में। उसमें कमिश्नर साहब और बहुत हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबरान हैं वो आके यहाँ पर शिरकत करेंगे। उसके अलावा 14 अगस्त के हवाले से है कि बहुत सारे चौक्स हैं, वहाँ पर हम कट आउट्स लगाएंगे। जश्न आज़ादी की तकारीब 5 रोज तक जारी रहेंगी, जिसमें आवाम की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम भी किए जाएंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान। मियांवाली में 14 अगस्त को खूबसूरत अंदाज में मनाने के लिए मियांवाली के शहरियों ने तैयारियां शुरू कर दी।
पूरे पाकिस्तान की तरह मियांवाली में भी 14 अगस्त की तैयारियां अरूज पर हैं। शहरियों ने परचम और बैजिस खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना था कि यौम आजादी की खुशी में गली और मोहल्लों को सजाएंगे। हम झंडियाँ खरीदने के लिए आए हुए हैं और बैज खरीदने के लिए आए हुए हैं। इंशाल्लाह अपने इलाके में झंडियाँ लगाएंगे और बैज रखेंगे और खूब इंशाल्लाह 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं। जबकि दुकानदारों ने बताया कि बड़ों की निस्बत स्टॉल पर बच्चे ज्यादा आते हैं। बच्चे अपनी पसंद के मुताबिक परचम, बैज और परचम से बनी टोपियां खरीदते रहे। कई लोग अपनी कारों, मोटरसाइकिलों पर परचम लगाने के लिए आते हैं। जी, यहाँ पे बच्चे आते हैं अपनी साइकिल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, बड़े आते हैं कारों के लिए, घरों में लगाते हैं झंडे वगैरह, गलियों से जाते हैं, घरों को सजाते हैं। मियांवाली के मुख्तलिफ मुकामात पर आजादी स्टॉल लगाए गए हैं, जिन पर आए रोज रश में इजाफा नजर आ रहा है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहर में सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों, बैजेस और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल्स लग गए। मुल्तान में आज़ादी का जश्न शायाने शान तरीके से मनाने के लिए शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स, शाहराहों और बाजारों में सजावटी सामान के स्टॉल्स लगा दिए गए। स्टॉल्स पर सब्ज हिलाली झंडियों, बैजेस, सब्ज हिलाली परचमों, कैप्स और दीगर सजावटी सामान शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। इस दफा अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। घर को सजाने के लिए मैं झंडियाँ लेने के लिए मुझे ये बहुत पसंद आई है। ये मैंने अपने लिए ली है और बच्चों के लिए भी माशाल्लाह बहुत सी झंडियाँ पड़ी हैं जो कि यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। स्टॉल्स पर बच्चे बड़े सभी पहुँचे। शहरी अपने गली मोहल्ले को सजाने के लिए सामान की खरीदारी करते नजर आए। जश्न आज़ादी के स्टॉल्स लगाने वाले दुकानदारों की भी चांदी हो गई। दुकानदार कहते हैं कि ईद से पहले ही स्टॉल्स लगा दिए थे। शहरियों का स्टॉल्स पर खरीदारी का रुझान बढ़ गया। सेल हो रही है, बच्चे आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं। दोपहर के टाइम जरा रश कम होता है, शाम और सुबह के टाइम रश जरा ज्यादा होता है। उसके अलावा हमारे जो है ना सस्ता सामान है, इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है। ज्वेलरी है, घड़ियां हैं, बच्चों की झंडियां हैं, झंडे हैं, बाकायदा लोग कारों को भी सजवा रहे हैं, रक्षों को भी झंडे लगा रहे हैं। बहुत जो है ना जोश और खरोश है। शहरी कहते हैं कि रवां साल भी घरों, गली मोहल्लों, बाजारों, इमारतों को सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों समेत दीगर सजावटी सामान से खूब सजाकर आज़ादी का जश्न मनाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।